Hello everyone, today we are going to talk about artificial intelligence. We all know that AI is important and growing field in computer science. The goal of scientists in recent time have been develop technology to allow computers to be able to take human-like decision and behave in intelligent manner. It is impact on everyone's life in the field of education, transportations, entertainment and many more. Keep in view all these points, CBSE and Government of India start to promote artificial intelligence in school level educations. So CBSE include artificial intelligence in class 8 and 9 as a skill subject. So today in this session we include basic of artificial intelligence. So let's start the topic. CBSE include 5 units in class 8. In this session we talk about unit first Excite. इस सेशन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ AI, perform various activities and various games during this session. This is all about the first unit. This is topic included in the first unit. Now we define the objective of this particular session. The objective of this module is to develop the readiness for understanding and appreciating artificial intelligence and its application in our lives. This module focuses on helping learner understand the world of artificial intelligence and its application through games, activity and multi-scenes learning to become AI ready. Second, introducing the learner to 3 domain of AI in a age appropriate manner. Third, allowing the learner to construct meaning of AI through interactive participation and engaging hand-on activities. AI is the term which fascinates people all over the world. The following terms have been common these days: big data, robotics, artificial intelligence, machine learning, deep learning, neural network. Whether we are agree or not, AI has become a part of our daily lives. ये हम आगे देखेंगे किस तरह से AI जो है हमारा डेली लाइफ का पार्ट्स बन चुकी है, शायद हमें पता है या नहीं. Now we define what is intelligence. Human intelligence include gathering information, storing information, retrieving information, analyzing information, decision making and taking actions. Human intelligence इन सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, तो हम चाहते हैं कि मशीन में भी ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हों ताकि वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर या इंटेलिजेंस मैनर में बिहेवियर करना स्टार्ट कर दे. इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं. जब एक छोटा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती के पास जाता है तो उसे नहीं पता कि आग से क्या खतरा है, तो वो अपना हाथ जब आग के पास लेके जाता है तो उसे खतरा महसूस होता है, तो हाथ को पीछे हटा लेता है. तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इस सारे जो एक्सपीरियंस से वो एक इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको स्टोर कर लेता है. लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम आग के पास जाएगा तो वो वापस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा और वापस से उस एनालाइज करेगा जो इन्फॉर्मेशन है, और वापस से वैसा बिहेवियर नहीं करेगा जैसा उसने लास्ट टाइम किया था. एनालाइज करने के बाद इन्फॉर्मेशन को वो वापस से हाथ को आग के पास लेके नहीं जाएगा. तो ये वो डिसीजन मेकिंग है कि अब हाथ को आग के पास लेके नहीं जाना है. तो इस तरह का ही हम बिहेवियर मशीन के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, और वो मशीन इंटेलिजेंस हो और सिचुएशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर स्टोर हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो उसको एनालाइज करे और डिसीजन मेकिंग करे. तो हम एआई को डिफाइन कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टेक्नोलॉजी and a branch of computer science that deals with the study and development of intelligent machines and software. In simple language, artificial intelligence is teaching the machine to learn, think, decide and act as a human would. तो AI के अंदर ये सब सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं: फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी. इन सबको मिला के ही AI का डेवलपमेंट होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
क्या अगर हम किसी मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लाना चाहते हैं तो उसमें हमें 4 चीजें इंक्लूड करानी होंगी: सेंस, रीजंस, एक्ट एंड अडेप्ट. व्हेन अ मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंसी, इट इज सिंपली सेड टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. In other words, when a machine can solve real world problem, improve on its own from their past experience, predict and make decision on its own, it can be termed as artificial intelligence. तो हम मशीन को artificial intelligence कहना स्टार्ट कर देंगे. How does this happen? अब ये होता कैसे है? जब किसी मशीन को artificial intelligence बनाना होता है तो उसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं: डेटा एंड एल्गोरिथम. मशीन लर्न थ्रू द इंफॉर्मेशन फीड टू इट इन द फॉर्म ऑफ डेटा. हम जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं, मशीन उससे लर्न करती है और अपने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करती है. अब डिसीजन मेकिंग के लिए उसमें कई सारे एल्गोरिथम इंक्लूड की जाती है. डेवलप ऑन एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग. उसमें हम कैसा बिहेवियर करवाना चाहते हैं, क्या उससे टास्क करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें एल्गोरिथम डेवलप की जाती है ताकि वो डेटा को एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर करे. व्हेन these 2 things include in the machine is called artificial intelligent. Now, difference between artificial intelligence and human intelligence. जो ह्यूमन लाइक बिहेवियर है, उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो डिपेंड करती है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. जो उसने पहले जो एक्सपीरियंस लिया है, उसने जो डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, उससे वो एनालाइज करता है और डिसीजन मेकिंग करता है बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम. बट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिसीजन बेस्ड ऑन मॉडल्स. जो हम उसमें मॉडल डेवलप किया, एल्गोरिथम डेवलप किए, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर करता है और डिसीजन मेकिंग करता है. ह्यूमन एक बाइस फॉर्म में डिसीजन ले सकता है, लेकिन मशीन बाइस नहीं हो सकती है. वो एक एप्रोप्रिएट जो भी उसमें एल्गोरिथम है, डेटा फीड है, उसको एनालाइज करेगी, उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट्स देगी. एक ह्यूमन जो है वो मल्टीपल टास्किंग कर सकता है, कई सारे काम एक साथ कर सकता है, जैसे मल्टीपल जॉब्स, लिसनिंग सॉन्ग्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड मेनी मोर थिंग डूइंग सेम टाइम. बट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी we are doing only one task at a time. This is difference between human intelligence and artificial intelligence. Now, strong AI and weak AI. Strong AI, capability of understanding a vast scope of activities with generalized human cognitive abilities, able to find a solution without human interventions. स्ट्रॉन्ग एआई में हम इंक्लूड करते हैं कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशंस के जो मशीन है अपना डिसीजन खुद ले सके और वो डिसाइड कर सके अपने डेटा एनालिसिस से, एल्गोरिथम से कि उसे क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है नेक्स्ट टाइम. उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई. वीक एआई डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. इसके एग्जांपल हैं एलेक्सा, ड्राइवरलेस कार, सोफिया. ये सभी डिवाइसेस हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हैं और वो उसी टास्क को परफॉर्म करती हैं. एबिलिटीज ऑफ एआई. एआई में कई सारी एबिलिटीज होती हैं. परफॉर्मिंग बल्की एंड हाई वॉल्यूम टास्क एफिशिएंटली. एआई के यूज कर से हम कई सारे बल्की एंड हाई वॉल्यूम टास्क को विद इन अ सेकेंड और एफिशिएंट मैनर में कर सकते हैं. एनालाइज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी लेस टाइम. आपने देखा होगा गूगल में हम कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए हम कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम उससे टाइप करते हैं, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. जबकि गूगल जो है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन पे वर्क कर रहा है. तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया जा रहा है. इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमें हेल्प करती है मैनी प्रॉब्लम को एक्यूरेट मैनर में सॉल्व करने में. help us solve real life problems efficiently. Now, advantage of AI. AI enabled device have many advantages, like AI enabled device give accurate and appropriate output and decision if algorithm is right.
इसी तरह जो AI एनेबल डिवाइस है वो उसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइस नहीं होते हैं, वो एकदम बाइस फ्री डिसीजन देती है, वो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उससे इफेक्टेड नहीं होती है। इसी तरह जो हम माइनिंग की अगर बात करें, जो AI एनेबल डिवाइस अगर माइनिंग में जाएगी तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो कंडीशंस है उससे इफेक्टेड नहीं होती है। इसी तरह AI एनेबल डिवाइस manage high volume data appropriate manner. Many AI enabled devices are used in various field to perform various tasks. Disadvantage of AI. जो AI मशीन्स है उसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो मोरल वैल्यू और एथिक्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि उनके जो डिसीजंस हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सोसाइटी के लिए ठीक नहीं हों। इसी तरह AI मशीन्स का यूज होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और कई सारी जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। थर्ड, AI जो मशीन्स होती हैं उनमें कॉमन सेंस नहीं होता है, वो ये कॉमन सेंस के साथ नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ हो सकती है या ये पॉसिबल है या नहीं। जैसे कि अगर हम AI मशीन्स को बोलें कि आपको चलकर कन्याकुमारी से जम्मू जाना है तो वो चलना स्टार्ट कर देगी, वो ये नहीं सोचेगी कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और ये टाइम बाउंड हम नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ पे। और जो फोर्थ इसकी डिसएडवांटेज है, जो AI मशीन्स होती है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, वो उसी टास्क को परफॉर्म करती है। फिफ्थ है कि AI मशीन्स और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत समय लगता है और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। नाउ वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ AI। हिस्ट्री ऑफ AI। In 1950, English mathematician Alan Turing write a paper कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस से। उन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को लाने की कोशिश की थी कि मशीन भी सोच सकती है। फर्दर वर्क कम आउट ऑन 1956। जॉन मैकार्थी उन्होंने एक वर्कशॉप की थी, उसमें जो टॉपिक था वो था स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये अभी का टॉपिक नहीं है, AI का डेवलपमेंट 1950 से स्टार्ट होना हो गया था और हम आज भी इस पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे मशीन्स सोच सकती है, कैसे एफिशिएंटली वर्क कर सकती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप you understand about the basic of AI. See you in next video. Goodbye.